Hello students. So today we are starting with a new subject, political science, and in that with a new chapter, that is chapter number 1, working of the constitution. So what do we understand by the word constitution? Constitution is a book that contains a set of rules and regulation that guides how a country or a state or any of the political organization work. It contains answer to the certain question like what powers do the government have and what work do a government must do. Okay, along with all this, it also contain certain rights of a common citizen living in a country or a particular state. For example, when we talk about the right to speak, right to be heard, right to have information, we talk about the rights that is written in a constitution. Okay, so this is the meaning of the word constitution. India has declared itself a secular democratic republic. Means these are the objective of a constitution. Secular means respecting all the religion that is existing in the country, and democratic republic means that the common citizen of the India have a right to elect its representative in the state or a country's legislature. Okay, along with this, constitution has also ensured that the justice is being served to the common people living in the country, along with the freedom is protected. Okay, Indian constitution is seen as the means through which social justice or equality will be established or can be maintained in the country. Means for maintaining the social justice or for maintaining the equality in the nation or in the society in which we live, constitution is seen as a means, or constitution is the base of that justice and equality. Okay, so when did the constitution came? Constitution arrived in India. Constitution came into the force on 26th of January 1950. Therefore that day is celebrated as रिपब्लिक डे. मतलब हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुए थे. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक, हम लोग इस बुक के हिसाब से अब चलना चालू करेंगे. इसमें हमारे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए. ओके, therefore 26 January 1915 is celebrated as Republic Day, and from that day onwards government has been working in accordance with the principle of the constitution. मतलब principles में जो भी rules and regulation लिखे गए हैं उसके अनुसार ही हमारी government अब उस दिन से काम कर रही है. So what we are going to learn in this chapter, what we are going to see in this chapter, okay, we are going to have a brief overview about the wide ranging nature of Indian democracy. Means how an Indian democracy works. हम लोग सुनते तो हैं India has been the largest democracy nation in the world, but how this Indian democracy works, okay, what important changes have taken place in the political process, what important steps have been taken by the government to establish a social justice and equality. Okay, and we will primarily focus on three areas. First is democracy, second is social justice, means equality, third is judicial system means the justice system of India. Okay, so first we will talk about the democracy, and the first topic that we are picking in democracy is the political maturity. Okay, so what do we understand by the word democracy? सिंपल टर्म्स में डेमोक्रेसी मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, देश के जनता, वो अपना नेता खुद चुनते बाय द वे ऑफ इलेक्शन. ठीक है ना, हम लोग ने वोट डाला, ये नेता हमारा जीता, और उसको कहते हैं डेमोक्रेसी. मतलब हम लोग चुनते हैं अपने नेता को, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, कौन हमको रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके. ओके, सो ये है बेसिक डेमोक्रेसी का मीनिंग, बट दिस इज़ नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. ठीक है ना, द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज़ टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस. मतलब सब प्रिंसिपल, जितने भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उनको साथ में लाना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का. लेकिन एक बार ये हो गया, देन डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी का फिर और काम बढ़ जाता है. वंस दे हैव इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, द रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु हैव बीन इलेक्टेड बाय देयर पीपल, उनका रोल पॉलिटिकल लाइफ में, मतलब सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें उनका काम, उनका रोल और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. फॉर एग्जांपल, नेशन में इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट के अंदर इलेक्शन अलग होते हैं. देयर आर द इलेक्शन फॉर द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जब हम लोग उनको चुनते हैं तो जो भी नेता को हम लोग चुनते हैं वो डायरेक्ट दिल्ली में हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में. ओके, देयर आर द इलेक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल एमएलए के लिए जो इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब वो उसमें कोई जीतता है, अगर कोई हम लोग एमएलए किसी को चुनते हैं तो वो हमको विधानसभा में इलेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है. ओके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में हमको रिप्रेजेंट करता है. जब लोकसभा का इलेक्शन होता है और वो अगर जीत जाता है तो वो हमको दिल्ली में रिप्रेजेंट करता है. ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हम लोग को रिप्रेजेंट करता है. एंड देन देयर इज़ अ लोकल गवर्नमेंट, बीएमसी के, वीवीएमसी के, ग्राम पंचायत के. ओके,
सो ऐसे इलेक्शन में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। एंड होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, मतलब जो भी हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इलेक्शन होते जाते हैं। देश में अलग इलेक्शन के टाइम हो रहे हैं पूरे देश में, ओके। महाराष्ट्र में अलग विधानसभा के इलेक्शन के डेट है, गुजरात में अलग विधानसभा के इलेक्शन का, जो ये एट ए रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दिस free and fair elections are being conducted, so it is considered as an important indicator for India's successful democracy. इसकी वजह से इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नेशन पूरे वर्ल्ड में है। And along with this, we have also seen increase in the participation of the people and the political process and the political competition in the Indian democracy. And this all have been proved quite successful and to democracy for the India. Okay. Now next coming to the right to vote. So हम लोग ने सुना है कि हमको वोट डालने पड़ते हैं 18 ईयर्स के ऊपर को, जो भी 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं दे हैव अ राइट टू वोट। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोविजन, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस राइट टू वोट ऑल्सो, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब जब तक इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली नहीं थी, देयर वर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, देयर वर सर्टेन प्रोहिबिटरी एक्शंस जो इंडिया में वोट डालने से मना करते थे। मीन्स इंडियन कॉमन सिटीजन इन इंडिया वेर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। बट ये सब होने के बाद आफ्टर टेकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जब इंडिया रिपब्लिक नेशन हुई, मीन्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने इक्वली सबको राइट टू वोट दिया, टू बोथ मैन एंड वुमेन अबाउट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है ना। 21 ईयर्स के ऊपर 1950 से 21 ईयर्स के ऊपर कोई भी जो भी रहेंगे वो वोट डाल सकते, ओके। एंड लेटर दिस वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। तो ये 1989 में फैसला लिया गया था, ओके। 1989 में जो भी 18 ईयर्स के ऊपर रहेंगे उन लोग वोट डाल सकते, बिकॉज इट वॉज क्वाइट नेसेसरी फॉर द यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री टू टेक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, इन दिस कंट्री। एंड हमारे देश में यूथ की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, देयरफॉर इट वॉज टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी एज दिस विल इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द यंग जनरेशन इन टू द पॉलिटिकल मैटर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से 21 से 18 कर दिया जो भी लोग वोट डाल सकते हैं इंडिया में। एंड दिस became proved to be quite successful and India became the largest democracy nation in the world. इंडिया को क्यों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नेशन कहा जाता है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन, okay. This change is not only quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active supports of young voters. तो qualitative and quantitative का meaning क्या होता है? This change is not only quantitative मतलब सिर्फ जो चीज़ नंबर ही हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग अगर कुछ चीज़ को मेजर कर सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव करते हैं। एंड व्हेन द मैटर ऑफ क्वालिटी इज इंक्लूडेड इन दैट थिंग, मतलब अभी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा था हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, सिर्फ नंबर्स ऑफ द वोटर्स सिर्फ इंक्रीज नहीं हो रहे थे, उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज है, बिकॉज द पीपल हैविंग मोर नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन नेशन, वो भी हमारा इंक्लूड, नॉलेज हमारे सबके बढ़ रहे थे, इंटेलेक्चुअल मैटर्स हम सबके बढ़ रहे थे, ओके। देयरफॉर बोथ द क्वालिटी अलॉन्ग विद क्वांटिटी, क्वालिटी ऑल्सो वॉज चेंजिंग एंड इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स, ठीक है ना। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट्स वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर, मतलब उन लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, इलेक्शन में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, okay. Right to vote. Now coming to the next topic of decentralization of democracy. What is the meaning of decentralization? उससे पहले हम लोग समझते हैं centralization को, okay. Centralization means only one person or one organization have the total authority or the total power. सिर्फ एक ही जन के पास पूरा power है, पूरा authority है, उसको कहते हैं centralization. Decentralization means जो भी power है वो सबको equally बांट देना, सब लोग अपना अपने decision खुद ले सकते हैं, okay. उसको कहते हैं decentralization. So हम लोग decentralization ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से हमारी इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, ओके। सेंट्रल डिसीजन अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने डिसीजन लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, ग्राम पंचायत उन लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सम ऑफ देम आर इट कंट्रोल्स द मिस यूज ऑफ पावर, ठीक है ना। जब एक ही जन को अपने ही स्टेट के बारे में सिर्फ पावर डिसीजन लेने का है तो मिस यूज ऑफ पावर तो बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल अब ज़्यादा कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हेन देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन पॉलिसीज विच विल
create opportunities of which will provide social justice and economic welfare for the common citizen of the country. उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. जो तो ये जो थी पॉलिसी वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन थी फॉर प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब इन्होंने प्रोवाइड की थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने, ठीक है ना. एंड वन सच थिंग इम्पॉर्टेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज गिविंग द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट. मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत हुई या बीएमसी हुई या कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुई, उनको और डेमोक्रेटिक पावर दिया जाए, उनको सेल्फ गवर्नमेंट रूल करने के लिए दिया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट दे दे. मतलब उन लोग अपना डिसीजन खुद ले सके, ऐसा उन लोग का प्लान था, ऐसा उन लोग ने सोचा, ठीक है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए थे, बहुत सारी कोशिशें की गई थी टू मेक दैट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना. एंड ये कब सफल हुए? इन द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं, ओके. जो भी तो जब 73rd एंड 74th amendment हुए in the constitution which gave a constitutional status to local self governing institution and also increased their power. मतलब ये दोनों amendment में जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी, जो भी ग्राम पंचायत के, they were given a self governing institution. मतलब they can take their own decision in the matter of their own governing, ठीक है ना. और उसी के साथ साथ उनके पावर्स को भी बढ़ा दिए गए थे, ओके. they increase their powers. So the next topic is about right to information. Okay, RTI Act 2005. So when you think that the democracy needs to be stronger or needs to be more in a comfortable position, the citizen of a country needs to be empowered. मतलब उनके पास भी कुछ ऐसी information होनी चाहिए common citizen के पास, जिसकी वजह से हमारी democracy और strong होएगी और perfect position में रहेगी. Okay, so how this can be created or how this can be done? Okay, it is quite important to pave a way for the common citizen of a country so that they can more participate or they can more interact with the ruling government, ठीक है ना. जब इन लोग ऐसा करते हैं, जब कॉमन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में मोर इंटरेक्शन, मोर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट बिकम मोर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है ना, और उन लोग ताकतवर बनते हैं एंड द ट्रस्ट ग्रोज बिटवीन दैम, ठीक है ना, उनके बीच में ट्रस्ट आने लगते हैं. एंड सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ सर्टेन राइट टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस और विच पावर डू द गवर्नमेंट हैव, ठीक है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर द कॉमन पीपल टू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, ठीक है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ हैविंग दिस राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस हैज़ एंश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वर्क्स ट्रांसपेरेंटली. मतलब जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो जनता के सामने आना चाहिए, जनता के सामने रहना चाहिए, कॉमन पीपल को भी पता चलना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर रही है. एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स वॉट एवर ड्यूटी और वॉट एवर फंक्शन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट itself is responsible for that. Okay, so this is the meaning of accountability, and this both transparency and accountability are the hallmarks for the good government. Hallmarks मतलब ये निशानी अच्छे गवर्नमेंट्स की. Okay, so right to have information has made the government more transparent. It means people can directly communicate or interact with their representative with the government, and it has been more transparent to the in front of the people, which has reduced the element of secrecy in the working of the government. मतलब अभी गवर्नमेंट को कुछ छुप के काम करने की ज़रूरत नहीं, किसी से डर के काम करने की ज़रूरत नहीं. जनता के सामने आओ, जनता के सामने काम करो, जनता के सामने ऐलान करो, और इसकी वजह से जनता के मन में तुम्हारे लिए विश्वास, दैट इज ट्रस्ट, और बढ़ेगा. ओके, so after the year 2000 the whole approach of the working of the democracy has been changed. okay, अभी जो भी चेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी में, जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ कंसिडर्ड एज द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ओके, हम लोग समझते हैं कि ये हक है लोगों का, कॉमन सिटीजन का. एंड अकॉर्डिंगली सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट सर्टेन राइट्स. फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैव फूड सिक्योरिटी, एंड दिस ऑल राइट्स विच हैज़ बीन गिवन टू द कॉमन सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया. Okay, now coming to the next topic, that is social justice and equality. Social justice and equality are the important objective of our constitution. Social justice means there should be no discrimination, and equality means all the people, all the citizens of a nation
should have equal rights and equal duties. Okay, so these are the two values on which our constitution is based on, or these are the two values that is constitution has been trying along with which to form a new society based on these two values. ठीक है ना? To establish social justice, that is to have no discrimination in a society, there is a need to remove all social conditions which are responsible for injustice that is being provided to the individual. Okay, the principle of justice एंड इक्वलिटी प्रिंसिपल्स मीन्स जो भी रूल्स है जस्टिस के और इक्वलिटी पे, इन लोग किस पे ध्यान देते हैं, किस पे उनका एम रहता है, ठीक है ना? तो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी एम एट एंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस सेंचुरीज अगो. जो भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहे हैं सिर्फ ब्रिटिश रूल से ही नहीं, सेंचुरीज से पहले. ओके, दिस डिस्क्रिमिनेशन इज एज सुपीरियर और इन्फीरियर, मतलब मैं तुझसे अमीर हूँ, मैं तुझसे गरीब हूँ, तुझसे बड़ा, तुझसे छोटा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी एंड गिविंग. ठीक है ना? ये सब के ऊपर हमें डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए. जब ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी तो एक सोसाइटी को सोशल जस्टिस सोसाइटी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है ना? एंड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मीन्स जो भी इंडिविजुअल हमारे, जो भी कॉमन सिटीजन है हमारे इंडिया में, दे ऑल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिक्स में. ओके, तभी तो सब लोग एक साथ मिल के डेवलप कर सकते हैं. सबका साथ सबका विकास. ओके, टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर मेड, मतलब जब जस्टिस कब, सोशल जस्टिस कब होगा, इक्वलिटी कब होगा, तो जब ये सब एस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. कौन? द गवर्नमेंट, द सोसाइटी. ठीक है ना? गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है, बट गवर्नमेंट को ही सिर्फ काम नहीं करने का है, इसी के साथ लोगों को भी काम, जनता को भी काम करने की ज़रूरत है. डेमोक्रेसी इज़ इंक्लूसिव, मतलब डेमोक्रेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है ये सब के लिए. Okay, one must try to bring all sections or the different sections that is existing in the society at one place in one time. सबको साथ में लाने की ज़रूरत है. और ये सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज बीइंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, now we will look at the efforts that is made by the government to maintain the position of social justice in India. इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या काम किया है सोशल जस्टिस मेंटेन रखने के लिए. सो द फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट. वी हैव हर्ड और वी हैव सीन दैट देयर आर सर्टेन रिजर्वेशन मेड कि एजुकेशन सेक्टर्स में कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशंस होते हैं, या पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट सर्विस में वुमेंस के लिए इतने सीट्स है, ओबीसी कास्ट के लिए इतने सीट्स हैं. ओके, बट what are the reasons for providing this reservation to okay, so the reservation is provided to those section of a society who have been deprived of their basic rights. ठीक है ना? जिनको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला है अपने सोसाइटी में डेवलप करने के लिए, जो लोगों को अभी तक बेसिक राइट्स, अभी तक उनके पास अपॉर्चुनिटी कुछ मिला नहीं है डेवलप करने के लिए, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है सो दैट दे कैन डेवलप इन द कमिंग फ्यूचर एंड कैन बी लिव इन द सोसाइटी विथ ऑल डिग्निटी. ओके, सो ये कहाँ पे हम लोग देखते हैं उनके लिए रिजर्वेशन? इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल द पीपल कमिंग फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप, हम लोग SC ST सुनने रहेंगे, तो जो लोग इस कास्ट से आते हैं उन लोग के लिए कुछ बेनिफिट्स, कुछ रिजर्वेशन गवर्नमेंट करके रखती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो. देयर आर ऑल्सो सर्टेन प्रोविजंस और रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एज वेल एज फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज OBC. Okay. Now coming to the next point, that is the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act. Atrocity means किसी पे अत्याचार करना. Okay, so this is considered as quite an important act for maintaining social justice or equality. और ये किन लोगों के लिए? That is for the people from Scheduled Caste और Scheduled Tribe. उनके खिलाफ अगर कोई इनजस्टिस एक्ट करता है, ओके, कोई एट्रोसिटी एक्ट कमिट करता है टू द पीपल अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दे ऑल आर लायबल फॉर पनिशमेंट, मतलब उनको सज़ा दी जाती है जो भी लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के खिलाफ अत्याचार या उनको दबाने की कोशिश करते हैं. एंड दिस वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट लॉ. ठीक है ना? इसकी वजह से सोशल जस्टिस और इक्वलिटी काफ़ी हद तक मेंटेन हुई थी इंडिया में. Now there are certain provisions for minorities. Minorities means the people from the, can be said as the lower caste or the people from different religion living together
उसको कह सकते हैं हम लोग माइनॉरिटी. तो देर आर सर्टन प्रोविजन और देर आर सर्टन opportunities provided by the government of India to protect the minority or to provide an equal opportunity so that they can develop in Indian system. Okay, for example, they have been provided opportunity for development in education as well as in employment. Okay, government of India, that is Indian constitution, prohibits any discrimination that is being conducted against the people of minority on the basis of कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन. ये किसी भी प्रकार से इन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए. ओके, एंड सो दिस वाज द कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन that is being provided by the government of India so that they can establish social justice and equality for the people. Okay, not only minorities but of different religion, different scheduled caste, scheduled tribe, women or other backward classes, सबके लिए. Okay, so they have been right to equality, right to freedom, right against the exploitation. That means no one can exploit them, no one can do atrocity act against them. They have a right to cultural and educational rights. मतलब जो भी minorities है उनको भी पढ़ने लिखने का, food security का rights तो है ही. So this was the provision for minorities. So the next topic is laws relating to women and provision for representation. So before independence, that is for the past 2 centuries before independence, lot of discrimination, lot of oppression has been conducted against the women living in our society. So after independence, lot of efforts were taken or made by the government of India to empower the women. That is taking into consideration the problems that were faced by the women. Okay, several policies or several rules have been adopted or made at the national and at international level to remove the illiteracy that has been existing among the women. Okay, जो भी illiteracy थी that is free education is still being provided to the women or to the girls in India. Okay, and to make available opportunity for the development of the women or for the development of the girls in the Indian society. Okay, so after this there are certain provisions, certain laws, certain act that has been made or that has been brought into the consideration. वो क्या है, that is पहले के ज़माने में women do not have the equal right or share in the property of their father or of their husband, but after the act property, a woman have a equal right or equal share in the property of the father and as well as of her husband. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज नहीं ले सकते. एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, यू कैन नॉट सेक्सुअली हरास अ गर्ल और अ वुमेन. ओके, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक घर के अंदर जो भी वुमेन्स के खिलाफ वायलेंट एक्ट हो रहे हैं, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन. Okay, so this all important provision has been created to create a favorable or to create a protected environment so that women can feel safe and protected while living in this democratic society of Indian nation. Okay, so in our country from the beginning, since inception, women do not have a adequate representation in the politics scenario of the country. मतलब पॉलिटिक्स में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर नेशन इन द वर्ल्ड. सो लॉट ऑफ एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन. ओके, एंड इन दिस when the 73rd and 74th amendments were taking place in the constitution, it is said means उसके बाद एक रिजर्वेशन क्रिएट किया गया. ओके, 33% ऑफ द सीट एट एनी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ग्राम पंचायत में या बीएमसी में या कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 33% ऑफ द सीट्स वेर रिजर्व और बीइंग सेव्ड फॉर द वुमेन. ओके, लेकिन कुछ स्टेट्स में तो इसको और भी बढ़ा दिया क्या, दे रेज्ड इट फ्रॉम 33% to 50% in several states of India including Maharashtra. मतलब महाराष्ट्र में भी 50% of the seats in the local self-governing institution is being reserved for the women. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल कमीशन एक डेवलप की गई, मतलब अ काउंसिल दैट वर्क्स एट द नेशनल लेवल, मतलब दिल्ली में उसका एक काउंसिल डेवलप किया गया विच वर्क फॉर द वेलफेयर or protection of the women, and similar commission has also been in exist at the state level. This act the act for the protection of women against domestic violence is an important step in the direction of democracy. मतलब घर में या locally
वुमेन्स के खिलाफ कोई भी वायलेंट एक्ट नहीं हो सकता है. एंड द एक्ट विच प्रोवाइडेड दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज एन important step towards the direction of democracy. Okay, apart from this, there is also need to protect the dignity and the self esteem of the women. Okay, dignity means उनके respect पे हानि नहीं होनी चाहिए, and self esteem means उनका कभी women's का कभी moral कभी down नहीं होना चाहिए. Okay, the act also rejected certain traditional forms of domination and authority in that is being existing in the society of Indian culture. जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे, फॉर एग्जांपल सती चल रहे थे सदियों से, उनको ख़त्म किया गया. प्रॉपर्टी में वुमेन्स को राइट्स नहीं दिया जाता था, उनको ख़त्म किया, और अब प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलने लगा है वुमेन को. तो जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे डोमिनेशन के, अथॉरिटी के इंडिया में, उनको सबको ख़त्म किया गया. एंड टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी, टू मेक इट इंक्लूसिव इन ट्रू सेंस, मतलब डेमोक्रेसी इंडिया में सही में आई है, सबके लिए आई है, इक्वली सबको राइट्स मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नॉट ओनली टू द पीपल लिविंग फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी बट ऑल्सो मेल फीमेल में भी अब कुछ फ़र्क नहीं किया जाने लगा. देयरफॉर डेमोक्रेसी प्लेज और कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट role in Indian system. Okay, so next we are talking about the role of judiciary, means how the justice system in India works, or what are the different functions of the justice system into the constitution of India. So judiciary system has always played an important role, and it is quite important that constitution, जो भी हमारी democracy इतनी आज strengthening है, इतनी ताकत है हमारे democracy में, judiciary system has played a quite important role in that. ठीक है ना. एंड जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी मेंटेन करने की सोसाइटी में, तो इसमें भी जुडिशियरी या जस्टिस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, इंटरप्रेटिंग, वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम लोग जो भी प्रोविजन, जो भी रूल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए, लिखे गए, जब भी हम लोग उनको ध्यान देते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, सो जुडिशरी ने उसी के साथ साथ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है उन पे भी ध्यान दिया है. ठीक है ना. जब भी हम लोग सिर्फ प्रोविजन रूल्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल बेसिक चीज़ क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है अपने कॉमन सिटीजन को, तो जुडिशरी सिस्टम ने हमेशा उस पर भी ध्यान दिया और कोशिश की है कि दैट ऑल द बेसिक objective of this constitution has been fulfilled, और the intention of the constitution makers, जो भी constitution बना रहे थे, उनके जो भी intention थे उस वक्त उस बनाने के, उनको सबको satisfy किया है कि नहीं, वो हम लोग ने देखा है. So we will try to understand the contribution of the judiciary in this regard, that is कौन सा regard of maintaining the social justice and equality into the country और strengthening the democracy. ये पूरा किया है तो किस तरह से पूरा किया है. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक. डायनामिक मीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और इज प्रोग्रेसिंग. कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा चेंज होते रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, क्योंकि हम लोग अमेंडमेंट तो बार बार कर ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो प्रोग्रेस कर रहा है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन. जो भी कंडीशन अप्रोप्रिएट है उस वक्त कि अगर ये नया रूल बनाना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज होते रह रहा है. ओके, एंड द पावर टू मेक चेंजेस इन सच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अलॉटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा और राज्यसभा ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं या कर सकते हैं. ओके, सो द जुडिशरी सिस्टम हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड द पावर टू मेक सच चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. जुडिशरी ने भी ये पावर उनको देने के लिए सहमति अपनी दी है, बट कुछ एक ट्रिक भी है इसमें. द जुडिशरी हैज़ टेकन अ स्टैंड दैट पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जब भी पार्लियामेंट अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, तो उन लोग बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो राइट टू वोट में जब हम लोग ने पढ़ा, तो उन लोग ने चेंजेस किया दैट द पीपल now for that the people of 18 years of age, the people who have surpassed the year 18 can vote, can cast a vote. ठीक है ना. जो 18 साल के ऊपर है उन लोग भी अब वोट दे सकते थे. लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर पार्लियामेंट ने सोचा होता कि जो वोट है उसको ही हम कैंसिल करेंगे, अब वोटिंग सिस्टम में इंडिया पे इलेक्शन नहीं होंगे, अब दूसरा सिस्टम लाएंगे, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना. ठीक है ना. तुम एज चेंज करो चलेगा, तुम प्रोसेस वोटिंग का चेंज करो चलेगा, लेकिन यही मत बोलो कि हम लोग क्या वोटिंग करना ही कैंसिल कर देंगे आपसे. तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हम लोग. ओके, next point or the second point is about the significant judicial decisions. So what important decisions have been taken by the justice system of India. So whatever basic rights that are learning
that we are learning, like for example right to heard, right to speech, right to have information, जो भी ये basic rights है which has been provided to the common citizen of the country, ये जो भी rights मिले हैं उसको अपने common citizen तक पहुंचाने के लिए judicial system has played a quite vital role. Okay, इसमें उनका बहुत important काम था. And some of the basic rights, some of the decisions which the court have provided, or the important subject on which the court has provided judgment includes right to the children. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर मना है, चिल्ड्रन को बेसिक एजुकेशंस का राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट द ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, हम लोग ने वुमेन के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल फ्रीडम दैट वही है, राइट्स ऑफ स्पीच, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्राइबल एम्पावरमेंट, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इन लोग के लिए. सो दिस ऑल एफर्ट्स और दिस जो भी ये सब राइट्स बेसिक सिटीजन्स को मिल रहे हैं उनमें कॉमन सिटीजन तक पहुंचाने के लिए जुडिशियल सिस्टम डिसीजंस ने या जस्टिस सिस्टम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है ना. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टेकन अ लुक ऑन द वर्किंग, हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क along with the constitution of India, and in this concept we have also understood how the Indian democracy works, or what are the different challenges before the Indian democracy. So we have also seen we also know that these are not the only problem. यही सी प्रॉब्लम नहीं जो हमारे सामने है. देर आर ऑल्सो डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंट सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स कॉन्फ्रंटिंग द पीपल इन लिविंग इन इंडिया. ठीक है ना. और उस हिसाब से हमको अपने को प्रिपेयर करना है, गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने का है. ओके, सो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. थैंक यू वेरी मच.